Good morning everyone. Good morning. Good morning. Very good morning. Very good morning to all of you. Good morning. Good morning. Dear students, in the previous class, we have discussed the pattern of second term, how the sample paper of CBSE has issued and how it can be solved in the final examination of term 2. So we were discussing letters, application for job, format also in the beginning of the session, even in the last year in plus one class, it was being discussed how a letter can be jotted down. So today we are going to proceed the same, that how letter can be written down. Letters. All of you must be having copy and pen along with you, so that whatever the thing is important to write, you can write it instantly. Okay. Letters. So how this topic can be jotted down? First, let us know the format. For example, if the address is given 43Z Ashok Vihar, New Delhi, New Delhi. In this way, if the address is given, sender's address, then we will write in this manner. You can see no punctuation mark is there. Okay. After that, we have to mention the date, leaving one line blank. Okay, like today, 17 Jan, comma 2022. After that, again leaving one line blank, receiver's address. For example, if we are writing letter to editor, the editor, name of the newspaper if it is given, otherwise any newspaper's name can be written down. We can even mention publication place, no need to hide it. We can mention the publication place. After that, again leaving one line blank, we have to mention subject and then colon. Sign of colon must be there. Okay. And leaving one line blank, again we have to mention sir, either sir or madam. Okay. And after that, no need to leave the line blank. We have to start writing the letter here. From the very next line onwards, we'll start letter writing. Okay. And what it should include, the very first one is introduction. Okay, number one. Number two will be main content for which you are writing this letter, main content. And the third one will be conclusion in the letter to editor. And when we have to finish it, we will finish it like saying thanking you, or closing like yours sincerely, faithfully or truly. Okay. And after that, signature, signature of the person if the name is given, designation in the bracket. Here we can mention the name also after the signature. Now let us know what actually this is being called. Here in the beginning, it is called sender's address. It's called sender's address in the beginning. At the top, this one is known as date,
as all of you are aware. And this one is receiver's address. Receiver's address, and this one is known as subject, as all of you know. And as we have written sir, it is called salutation. This one is body of the letter. Let's go body of the letter. So this one, yours so sincerely, complimentary clause. This is called complimentary clause. And this one, signature and name, is called sender's name. Subscription can also be called, okay, sender's name, the person who is sending the letter. And designation, it is, as I already have written, designation if applicable. अगर तो दी हुई है तो ठीक है, आप लिख दीजिए, okay, otherwise you can leave it. So dear students, this is the format of letter writing, and even I have mentioned how it can be done in the final examination. So as you know, in your syllabus formal letters are being given. Letters, if we discuss letters categories, letters are of two categories: formal, informal. Okay, formals like official letters, and informal who are not official, non-official letters, that's informal. So first of all, we will categorize formal letters. How many categories are there of formal letters? So the very first category is business letters. That is the first category under formal. After that, official letters. That is the second category. After that, the third one is letters to editor. Is copy is being visible to all of you? Copy is visible to all of you? Yes, sir. Okay, that's nice. Letters to editor. After that, the category which we have discussed that day, that is job application letters. ओके, हाँ. सो डियर स्टूडेंट्स, ये बिजनेस लेटर्स आपने ऑलरेडी प्लस वन में किए हुए हैं, हम फिर भी डिस्कस कर सकते हैं. ऑफिशियल लेटर्स, कंप्लेंट लेटर्स भी कर सकते हैं हम दोबारा. लेटर्स टू एडिटर आप शुरू से ही करते आ रहे हो. जॉब एप्लीकेशन लेटर्स का कुछ पार्ट हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. ओके, सो जैसा कि हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी प्रीवियस क्लास में कि जॉब एप्लीकेशन लेटर्स में आपको एक तो क्वेश्चंस को चेक करना है कि क्वेश्चन जो है आपका उसमें सेपरेट सीवी के लिए बोला है या अटैच करने के लिए साथ में बोला हुआ है, तो आपने उसमें देखना है. ठीक है, अच्छा बताइए, मैंने सीवी की फुल फॉर्म क्या बताई थी? कौन बताएगा फुल फॉर्म ऑफ सीवी? Curriculum vital. Anyone else? CV. Full form of CV, curriculum vitae. As already I have told you in the previous class, that is curriculum vitae. CV, curriculum vitae. CV. Okay, so today, as I discussed in the previous class, we will discuss how CV can be framed. Okay, CV कैसे बनाया जाता है, करिकुलम विटाए कैसे बनाया जाता है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था. अच्छा, और इसका क्या क्या नाम है? सीवी को और क्या क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ. Some of you are speaking. Biodata. Resume. It is called resume. Okay,
For example, one biodata we can frame out here, or we can write curriculum vitae, or we can write resume also. Okay, at the top. After that, see, if you will google out types of resume, you will find millions of pages there, thousands of pages. But the main important thing is you have to check what kind of biodata you have to frame, whether it is business biodata, whether it is institutional biodata. So you have to check first. You can do somewhat variations according to the question. So first of all, which is very important and compulsory, that is name first you will write, then sign of colon. Here the name will be there. For example, if I am writing Aman Jain. For example, if in the application it is given na, you are Aman Jain and you have to apply for the post. So name can be written down the same one, Aman Jain. Okay, and then father's name, sign of colon. So here you can mention, if father's name is not given, you can write it by your own. No need to hide it. Like Naresh Jain, I have written down. After that, date of birth, sign of colon. So here we can mention date of birth like 10th December, 1996। अच्छा, अभी इसमें एक और टेक्निकल ग्लिच है। अगर कई बच्चों को कई बार पता नहीं चलता कि इस जॉब के लिए कितनी जो है एज उनको रखनी है, कई बार वो यहाँ तो एज छोटी लिख जाते हैं और वहां जॉब के लिए एज जो है वो और चाहिए। तो अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन है डेट ऑफ बर्थ लिखने में, डेट मंथ ईयर लिखने में, तो आप इसको छोड़कर डीओबी लिखने की बजाय सीधा ही एज कॉलन डालकर यहाँ पे जैसे मान लीजिए 25 साल लिख दी, 30 ईयर लिख दी, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो ये वाला आप लिख सकते हो डेट ऑफ बर्थ में, अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है कि कौन सी ईयर डालें ताकि वो उस एज पर सेटिस्फाई हो जाए, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। अगर तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो डेट ऑफ बर्थ करके आप इस तरह से लिख लें, अदरवाइज सीधा ही एज कॉलन और ईयर आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में कि वो मैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्स्ड है, वो आपने लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ ही इज नॉट मैरिड, सिंगल, और इफ इट इज द पर्सन इज मैरिड, देन यू कैन jot down here मैरिड। so that is marital status. After that, nationality, sign of colon, and here Indian, you can mention Indian. Okay, after that, qualification, which is very important part of the CV. Qualification dear is of two types. One is educational qualification, the second one is professional qualification. Okay, for example, let me tell you what is educational and what is professional. See, educational qualification includes like 10th, 12th, okay, graduation. This is called educational. Academic qualification, this is called academic. Okay, the second one is professional. Qualification is of two types, academic qualification and the professional. Professional includes like PG degrees like Master of Arts, like Master of Science, like you can say Master of Commerce, or any kind of diploma, dancing course, or computer course, BBA, BCA, MCA, BBA, or MBA. These are professional courses. Okay, so that according to the post you have to check कि कौन सी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको उसी क्वालिफिकेशन सीवी में सेट करनी है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वालिफिकेशन को सिंपल टर्म्स में आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधा ही, अदरवाइज नंबर 1 लाइक MBA। फुल फॉर्म ऑफ MBA, जल्दी जल्दी बताओ, कौन बताएगा फुल फॉर्म ऑफ MBA? Bachelor in Arts. Many of you have to respond. MBA full form. Master of Bachelor in Arts.
Anyone else? of Bachelor in Arts. Master of Business Administration. Hmm. Some of you are having a problem in full forms. Okay, you must know also, dear. MBA. If it is alone BA, then it is Bachelor of Arts. If it is MBA, it means Master of Business Administration. Okay, Master of Business Administration. That is MBA. You must know MBA. So you have to mention also MBA. He has done in which field? So he has done MBA in marketing. अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ओके अगर उनको टेक्निकल सपोर्ट के लिए चाहिए तो टेक्निकल के लिए लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए चाहिए तो इलेक्ट्रिकल के लिए डाल दीजिए ठीक है एमबीए मार्केटिंग कहां से करी कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट लखनऊ आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज कोई भी डाल सकते हैं ओके मेट्रोपॉलिटन सिटीज डालने का कोई नुकसान नहीं है आपने लोकल नहीं डालना कोई भी आप लखनऊ डाल दें दिल्ली डाल दें कोलकाता डाल दें चेन्नई डाल दें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं नंबर 2 सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऊपर आनी है और जो कम वाली होगी वो नीचे आएगी ठीक है ये ध्यान रखें तो नीचे आप उसकी कर दें फॉर एग्जांपल बीएससी ठीक है बीएससी फ्रॉम डीसीपी अपनी तरफ से भी लिख सकते हो आप अगर दिया है तो कोई बात नहीं कॉलेज न्यू दिल्ली what is the full form of BSc Bachelor of Science. So this is qualification okay a professional भी आ गई और इसमें educational qualification भी आ गई अब चलिए एक्सपीरियंस के ऊपर एक्सपीरियंस में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4 years experience 5 years experience or you can mention like 1 year at 1 साल लगाया है उसने कहां पे विप्रो में 1 year at विप्रो लिमिटेड अब इसमें बता भी सकते हो किस पोस्ट पे था वो एज ए मार्केटिंग मैनेजर ओके सो ये एक्सपीरियंस में उसका काउंट होगा और क्या डाल सकते हैं इसमें लैंग्वेजेस नोन उसको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं तो इसमें आप डाल सकते हो यूजुअली 2 लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश एंड हिंदी ओके उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि रिज्यूमे में चेक किया जाता है स्ट्रेंथ आपकी क्या स्ट्रेंथ है जिसके कारण कंपनी आपको हायर करे ओके दैट इज स्ट्रेंथ द वन इज गुड टाइम मैनेजमेंट उसकी अच्छी है पॉजिटिव टीम स्पिरिट क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आपने काम करना है तो वो टीम वर्क से होगा एंड पॉजिटिव टीम वर्क जो है वो आपको पॉजिटिव पॉइंट ही देगी एंड लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो हमेशा प्रेफरेंस में रखी जाती है लीडरशिप जो है आप इसमें ऐड कर सकते हो ओके उसके बाद आप स्ट्रेंथ के बाद डाल सकते हो हॉबीज में कुछ भी हो सकता है रीडिंग ट्रैवलिंग देखिए स्टूडेंट्स आप ये सारी चीजें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो ठीक है तो इसमें कुछ भी लिख सकते हो लेकिन जब आप रियल में अपना सीवी बनाएंगे आफ्टर +2 आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपको वही चीजें डालनी है जो आपको सच में अच्छी लगती हैं तो उसमें आप गॉसिप्स नहीं लिखोगे है ना क्योंकि इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस किया जा सकता है यू हैव रिटन डाउन योर हॉबीज आर ट्रैवलिंग सो दे कैन आस्क यू सम ट्रैवल्ड प्लेसेस बाय यू एंड इन द सेम वे इफ यू आर राइटिंग रीडिंग दे कैन आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग यू लाइक नोवेल रीडिंग फिक्शन और नॉन फिक्शन सो जब रियल में बनाओगे तो आपको उस वैसे ही लिखना है जैसे आपका इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज हैं अदरवाइज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ भी लिख सकते हो रीडिंग ट्रैवलिंग एंड प्लेइंग okay so these are the hobbies and then permanent address if it is in the question it is given then it's okay otherwise मैंने जैसे पहले बोला मेट्रोपॉलिटन सिटीज का आप कुछ भी लिख सकते हो
15D हमने डाल दिया पीताम्बरा, न्यू दिल्ली. This is the permanent address. One address is more correspondence address. Correspondence address क्या होता है, कई बार आपको जो है relocate करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. जैसे मान लीजिए वो जॉब दिल्ली में कर रहा है और घर उसका कहीं और है, तो correspondence address जहाँ वो जॉब कर रहा है वहां पे डाल सकते हैं. अगर वो अपने घर के पास ही कर रहा है, वही उसका एड्रेस है, तो आप ये सेम ही उतार सकते हो. ठीक है, अगर नहीं तो आप यहाँ चेंज भी कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट वन विच इज इंपॉर्टेंट, contact number. Contact number, it is important. So if it is given in the question तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं दिया तो आप इस तरह से कर देंगे. ओके, उसमें आपने डिस्क्लोज नहीं करना है अपने फोन नंबर को. आप 4-5 डिजिट्स देख क्रॉस कर सकते हैं, या आप पहले क्रॉस करके पीछे डिजिट डाल सकते हैं. ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर ये आ जाएगा. उसके बाद ईमेल आईडी. ईमेल आईडी, ईमेल आईडी जैसे कि अगर उसका नाम दिया हुआ था अमन जैन, ठीक है, तो आप उसके नाम से अपनी आप ही ईमेल आईडी बना दो, aman@gmail.com. ठीक है, तो आप ईमेल आईडी जो कि कंपलसरी होती है वो आप बना सकते हो. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेफरेंस, REFRENCE, रेफरेंस नंबर या रेफरेंसेस लिख दीजिए, रेफरेंस नंबर की बजाय रेफरेंसेस. रेफरेंसेस, अब रेफरेंसेस क्या चीज है ना. फॉर एग्जांपल जिसने जितनी भी इंफॉर्मेशन डाली अमन ने अपने सीवी में, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो सही है, तो उसको जानने के लिए रेफरेंसेस आपको देना पड़ता है. रेफरेंसेस का मतलब 2 पर्सन्स के नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, जिससे जहां आपको जॉब मिलने जा रही है वो को कॉन्टेक्ट करके आपके बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग्स कर सकें, पूछ सकें कि वट एवर इज बीइंग जोटेड डाउन देयर इन द सीवी, इज इट ट्रू और नॉट. ओके, सो लाइक फर्स्ट आई एम गिविंग प्रोफेसर एसपी सिंह, पीतमपुरा से है ना वो पर्सन जो अप्लाई कर रहा है, तो पीतमपुरा से, पीतमपुरा न्यू दिल्ली. एक तो इनका रेफरेंस दे दिया उसने, ठीक है, और साथ में अगर रेफरेंस दिया है तो इसका मतलब कॉन्टेक्ट नंबर भी देना पड़ेगा ना, तभी वो पूछेंगे उनसे. बाकी आपने इस तरह से कर देना है. उसके बाद एक और रेफरेंस दे सकते हैं, डॉक्टर अशोक गुप्ता, ये आप लिख दो RK पुरम, वो थोड़ा सा डिफरेंस डाल दिया, न्यू दिल्ली, ये भी न्यू दिल्ली में है, RK पुरम से, और इनका भी कॉन्टेक्ट नंबर इस तरह से आपने दे देना है. Okay, so dear students, let me repeat once again what we have studied. First, how biodata यानी कि रिज्यूमे और करिकुलम विटाए कैन बी फ्रेम्ड. फर्स्ट देखिए, जो मैंने ये आपको सैंपल दिखाया है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप इसमें इसके जैसा ही सेम बनाएं. आप इसके बहुत सारे आपको सैंपल्स मिल जाएंगे नेट पे, आप वहां से कोई भी सैंपल इजी जो आपको कॉम्प्रिहेंड करने में इजी लगता है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो. पर ये डिपेंड करेगा कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो चेंज होगी, उसका ध्यान रखेंगे आप लोग. ठीक है, तो सबसे पहले तो सीवी, करिकुलम, सीवी लिखें कैपिटल लेटर्स में यानी कि करिकुलम विटाए, या बायोडाटा लिखें कैपिटल लेटर्स में, या रिज्यूमे कैपिटल लेटर्स में. मैंने बायोडाटा लिख दिया, ठीक है. फिर नेम आ जाएगा अगर दिया है, अगर नहीं दिया मान लो आप बोलेंगे सर नेम ही नहीं दिया, तो लिख दो ABC कुमार. ठीक है, फादर्स नेम कुछ भी लिख सकते हैं. डेट ऑफ बर्थ अगर आपको नहीं कैलकुलेशन करनी आ रही है तो सीधा ही एज लिख दें. मैरिटल स्टेटस में सिंगल या मैरिड भी डाल सकते हैं. नेशनैलिटी डाल दी. क्वालिफिकेशन मैंने 2 बताई, एक एकेडमिक और एक प्रोफेशनल, तो आप ऐसे इकट्ठी भी डाल सकते हो. अगर आपने अलग डालनी है तो पहले लिख सकते हो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फिर उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालेंगे, उसके बाद प्रोफेशनल, फिर प्रोफेशनल डालेंगे. ठीक है, अगर आप और क्रिएटिव बनाना चाहते हो अपने रिज्यूमे को, तो इसका चीज का ध्यान रखें. तो जब क्वालिफिकेशन भी लिखेंगे तो +2 से नीचे नहीं लिखेंगे. ठीक है, ये नहीं कि +2 से नीचे चले जाएं, 10th में चले जाएं, 8th भी बता दें. So no need to mention the lower classes, up to 12th only qualification. And how qualification can be jotted down? First highest qualification, like if the person has done PhD, so first PhD, after that post graduation, then graduation, then +2. इस तरह से आपने लिखनी है. ठीक है, पहले +2 नहीं लिखनी, पहले +2 करी, फिर ग्रेजुएशन करी, फिर MA करी. नो, हाईएस्ट फर्स्ट.
लाइक हियर पहले प्रोफेशनल लिखी, हाईएस्ट है, उसके बाद ग्रेजुएशन की आगे। उसने प्लस टू की मेंशन नहीं करी क्योंकि जरूरत नहीं है, मार्केटिंग मैनेजर चाहिए तो उनको प्लस टू से क्या लेना देना। एक्सपीरियंस बता दिया, अपनी तरफ से आप लिख सकते हो। लैंग्वेजेस नोन हमने लिखी, लैंग्वेजेस उसको कौन कौन सी आती हैं, स्ट्रेंथ उसकी क्या है, हॉबीज उसकी क्या है वो हमने मेंशन करी, और परमानेंट एड्रेस। ओके, एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, contact number if it is given same can be jotted down, otherwise in this manner. Email ID and references, 2 references can be given. So ये आपको ध्यान रखना है कि CV जो है वो किस तरह से बनाया जाना है, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए। Is there any question regarding application for job or data, biodata? Okay, if it is there you can ask बच्चे, without any hesitation you can ask. नो, ओके। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है तब आप एक क्वेश्चन लेंगे होमवर्क के लिए, ठीक है। या मैं एक क्वेश्चन आपको सैंपल करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद आपको होमवर्क के लिए मैं दूंगा, ठीक है। एक सैंपल क्वेश्चन है, यू आर तपस ऑफ A150 माउंट रोड चेन्नई, माउंट रोड चेन्नई, you have seen an advertisement, you have seen an advertisement for the कहां पे देखी एडवर्टीजमेंट, इन द न्यूज़पेपर। ये अगर दिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप कोई भी इंग्लिश पेपर जो है वो ले सकते हो। इन द न्यूज़पेपर द चेन्नई टाइम्स, चेन्नई टाइम्स, दिस इज न्यूज़पेपर्स नेम, ओके। इट इज ऑलवेज बिगिंस विद द आना चाहिए वहां पे, द चेन्नई टाइम्स। एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, एक ये एड्रेस ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपने पहले ही चेक कर लेना कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए। एक न्यूज़पेपर हो गया, फॉर द पोस्ट ऑफ, और तीसरा आपने अप्लाई किस लिए करना है, फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर अकाउंट्स। अकाउंट्स में जो है वो उसको जॉब अप्लाई करनी है, ठीक है। इन प्लेस कौन सा है, सुंदरम वेस्ट साइड, ठीक है। अब आपको इन्होंने बोला है अप्लाई फॉर द पोस्ट विद योर कंप्लीट बायोडाटा, with your complete biodata. So this is the question, okay. This is the post manager accounts and this is the place Sundaram Bedside चेन्नई, ये चेन्नई में ही है, यहाँ पे उसने अप्लाई करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में आपको ये कितने मार्क्स का आएगा जल्दी बताओ, किसको पता है? Sir, 5. 5. हाँ, वेरी गुड, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपको। 3 मार्क्स का आपका इनविटेशन है, राइटिंग सेक्शन आपकी 8 मार्क्स की है टोटल। बच्चे लाइन जो लीव करनी है बायोडाटा में कोई जरूरत नहीं है, बायोडाटा में लाइंस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बायोडाटा आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, और लेटर में जहां जहां छोड़नी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले कौन बताएगा सेंडर्स एड्रेस क्या आएगा सबसे पहले, जल्दी। A50 Mount Road, Chennai. A150, it is very good. Second was Mount Road and the third is the city. सबसे पहले मुझे ये कौन बताएगा कि what it is called, इस चीज को क्या बोलते हैं? Sender's address. 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 सेंडर्स एड्रेस, वेरी गुड। अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्या आएगा लाइन छोड़कर? Date. Date. Date.
डेट डेट। अब बताइए मुझे, अब यहाँ पे एक लाइन छोड़कर फिर क्या आएगा? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में सबसे पहले क्या लिखूं मैं? दो एडिटर नो, हम लेटर देखो ना कहाँ लिख रहे हैं बच्चे। रिसीवर्स एड्रेस में मैं बिगिनिंग कैसे करूं? द मैनेजर हाँ, वेरी गुड, दी मैनेजर, दी मैनेजर। ओके, आगे प्लेस का नाम क्या है? सुंदरम वेस्ट साइड। कहां पे है ये प्लेस? चेन्नई चेन्नई। ठीक है, ये सेंडर्स एड्रेस आ गया, ये डेट आ गई, ये रिसीवर्स एड्रेस आ गया। अब इसके बाद क्या डालूं मैं लाइन छोड़कर यहाँ पे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 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 हाँ, सब्जेक्ट लिखूंगा मैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, और किस डिपार्टमेंट में? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। सर, इसको कैसे लिख सकते हैं? इन रिस्पॉन्स, इन रिस्पॉन्स टू यूर एडवर्टीजमेंट। ये पूरा लिखना है आपने, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। एडवर्टीजमेंट किसमें? इन द चेन्नई टाइम्स। डेट बताएंगे कब कब उसने ये देखी, डेटेड। जैसे मैंने यहाँ 17 डाली ना, आप डाल दीजिए 12। डेटेड 12 जनवरी 2022। आई विश टू बी considered for the position mentioned above, okay. So this is introductory paragraph. He has told that from where he has come to know regarding the job and from which newspaper, and he is even asking that he is suitable for this post. So that is introductory paragraph. After that, I feel my qualifications and experience are good enough to enable me to discharge my duties, ओके, फुल स्टॉप। अब इसमें हमने सेपरेट सीवी लगाना है, ठीक है, इसमें साथ में इसके बीच में नहीं लिखना है। तो यहां पे लिखेंगे आई हेयर बाय attach the attested copies of my certificates, आप टेस्टिमोनियल्स भी लिख सकते हो, and my complete biodata, okay. If given a chance, साथ में ये भी लिख रहा है वो, if given a chance, अगर मुझे चांस दिया जाता है तो क्या करेगा? I assure you, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, I assure you that I shall discharge
I shall discharge my duties with utmost honesty. Okay, with utmost honesty. So after that, he will conclude it by saying, thanking you, yours faithfully. What was the name? क्या नाम था उसका? Tapas. Tapas. Very good, excellent. Some of you are very curious to watch. तपस के साइन कर दिए मैंने, ओके, फिर नाम उसने लिख दिया तपस, ठीक है। साथ में वो क्या लिखेगा? एनक्लोजर यानी कि एप्लीकेशन के साथ वो क्या लगा रहा है, तो उसने क्या लगाया एप्लीकेशन के साथ? बायोडाटा उसने साथ में लगा दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है वो इसका बायोडाटा जो है वो आपने बनाना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, बायोडाटा मैंने आपको पहले बना के दिखा दिया और एप्लीकेशन भी मैंने आपको बता दी कैसे लिखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले सेंडर से एड्रेस डालना है, फिर डेट डालनी है, फिर रिसीवर से एड्रेस डालना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखनी है, सैल्यूटेशन के बाद ये सारी आपकी बॉडी ऑफ द लेटर आ गई, ठीक है। और फिनिश उसको कंक्लूड करके आपने सिग्नेचर, नेम और उसका एनक्लोजर डाल दिया साथ में। तो आई थिंक सभी को समझ आ गया एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल प्रिपेयर नाउ एप्लीकेशन फॉर जॉब्स नाउ एंड होमवर्क क्वेश्चन विल बी गिवन ऑन द नोटिस बोर्ड। सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपीज पे करेंगे एंड लेटर इट विल बी चेक्ड। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू, गुड बाय।